থেকে বেরোচ্ছি আজকেই ওই বাঙালি পাড়াতে এই রাধেকৃষ্ণ প্রসাদ এই হোটেলটাই ছিলাম। এখন বেরিয়ে যাব হচ্ছে যত সাফারি আছে সাফারির টিকিট আমরা কেটেছি, 3 জন আছি, 250 টাকা করে সাফারির টিকিট নিয়েছে। অনলাইনে বুক করেছি, এই সিস্টেমটা ভালো করেছে, নাহলে অফলাইনে করতে গেলে অনেক লাইন দিয়ে কাটতে হয়, যার জন্য আমরা কাটা হয়নি। নেক্সট আবার দেখাচ্ছি রাস্তায় গিয়ে। বেরোনোর পরে ফার্স্ট পাহাড় দেখতে পেলাম। অ্যাকচুয়ালি কালকে রাত্রিবেলা এখান দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে যে রাত্রিবেলা পাহাড় ছিল সেটা দেখতে পাইনি। সকালবেলা এই পাহাড় রাজগিরে, এর নিচেই কুণ্ডটা আছে, এই কুণ্ডে আমরা স্নানও করে এলাম। এখন সকালবেলা বেরিয়েছি, তা এখন বাজলো 10:36, 10:38 হলো। 14/12/2022 আজকে। আমরা এখান থেকে আজকে এই দেখতে ব্যাক টু হোম কলকাতা। এই রাজগিরে এই টাঙ্গাগুলো নিয়ে ঘুরতে হয়, কিন্তু আমাদের যেহেতু পার্সোনাল গাড়ি আছে সেজন্য আমি পার্সোনাল গাড়িতেই যাচ্ছি। এখানে ম্যাক্সিমাম ওই টাঙ্গাগুলোই আছে দেখছি। এই মেন রোডে উঠে গেলাম এখন। এই যে টাঙ্গাগুলো যেগুলো আছে এগুলোতেই সব সাফারি করছে। রাজগিরে এটাই হচ্ছে ঘোরার জায়গা, কিন্তু যাদের পায়ে প্রবলেম আছে তারা এত উঁচুতে উঠতে পারবে না। বিহার পুলিশ আর্টিকা ইউজ করছে এখানে। এটাই হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ডে আমরা গিয়েছিলাম সকালে, স্নান করে এসেছি ব্রহ্মকুণ্ডে। এই হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ড। এখান থেকে জাপানিজ মন্দিরও আছে ডান দিকে। রাতে ব্রহ্মকুণ্ড হচ্ছে একদম পাহাড়ের নিচে, ডান দিকে এন্ট্রি, এর বাঁ দিকে যত আছে তোমার সব টাঙ্গাগুলো সব এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে। হ্যাঁ, আর এই যে ব্রহ্মকুণ্ডের মেন এন্ট্রিটা হচ্ছে এটা। এর আমার ছবি তোলা আছে, এগুলো আমি পরে দিচ্ছি সব কিছু। এবার দেখি, সামনে পাশেই গুরুদ্বারা আছে। এই রাস্তাটা হচ্ছে সোন ভান্ডার, মানে পুরনো গুফা, এখন পর্যন্ত গাড়ি চলে যাবে বলছে, সেই জন্যই এলাম। দেখি এবার সোন ভান্ডারে কি আছে। দ্বীপ পার্ক, সোন ভান্ডার, নগরি হিলস। রাস্তাগুলো বেশ ভালো লাগছে, উঁচু নিচু। এবার রাস্তায় মানে কতটা ডাউন হচ্ছে এটা ক্যামেরায় হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। আমরা এখন এসে পৌঁছালাম সোন ভান্ডার। তা এই হচ্ছে সোন ভান্ডারের মেন গেট। ভিতরে বলছে পুরো গুফা আছে, রাজা নাকি খাজানা রেখে গেছে। কি খাজানা রেখে গেছে ভগবান জানে। এখানকার লোকে যা বলছে তাই শুনছি আর কি, আর কিছুই না। এই হচ্ছে সোন ভান্ডার গুফা। আরও যাব ভিতরে গিয়ে আবার 10 টাকা করে নিয়ে যেতে হচ্ছে, গিয়ে তারপরে আবার এইখানে সাফারি দেখি কোথায় নিয়ে যায়। এটা যেতে গেলে টোটো করে যেতে হয়। দেখাচ্ছি কি আছে। मिलेगा नहीं तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी निर्भय के कारण भारत सरकार इसे राज का राज रख दिया और एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था संकलिपि। आएंगे ये मंत्र लिपि जो देख रहे श्रीमान टीवी चैनल पर जो प्रचार चल रहा, ये मंत्र का नाम था संकलिपि।
कि जो भी व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करेंगे आपरूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, इस मंत्र की पढ़ाई नहीं हुआ। क्यों? नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधे। इसी 1199 में जब अल्लादीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से कुल सिम बन सिम का कोड भाषा में रह गया। जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ श्रीमान, तो पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और पूर्वी गुफा। तो पश्चिमी गुफा से जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा। जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ, माथे का सिंह, बॉडी का सिंह, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से तीसरे तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन दोनों प्रतिमा धातु रहने के कारण जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ हो गया, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। जी सर, बाहर में आएंगे। ये मंत्र लिपि जो देख रहे हैं सिर मानिए संस्कृत पाली मिक्स है, इसे पढ़ा जा चुका है। जैसे उर्दू में पढ़ा जाता है, इसी तरह से यह भी संस्कृत में पढ़ा गया है। निर्माणा लाभाए तपस्या होगे शुभ गोए अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 30% एडी। इससे क्लियर से निकलता है सर कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसके बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं से जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। उसी तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर, इनके माथे पर 7 फन का निशान था, जो अल्लादीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर भास्करी का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर। ये छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। इधर आएंगे। ये जो देख रहे हैं आगे हम, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 अशोक होते हैं, जैन धर्म में 32 अशोक होते हैं। उसी तरह से एक रानी का फिगर पूजे के हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि अनुमान से वहाँ भी पाया गया सर, कुछ इस दीवार पर, कुछ इस दीवार पर, कुछ गेट के पास। ये संघ लिपि के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बगल वाली पूर्वी गुफा में चलेंगे, जहाँ पर जैन टेम्पल, बौद्ध टेम्पल आ जाएंगे। गुफा जो देख रहे हैं सिर मानिए पूर्वी गुफा है। ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। तो 2 स्टूडेंट थे नालंदा का, फायन हॉन्सन। जब इसकी रिसर्च 1905 में किया गया तो डबल स्टोरी मिला, डबल गुफा, एक प्रथम और द्वितीय। लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में श्रीमान ये टूटकर ये नष्ट हो गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु जब इसकी पत्थर बाहर किया गया, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। वो भी अष्ट धातु का था। कीमती पत्थर रहने के कारण इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ शंख आकार का लिपि बाहर में भी पाया गया सर, इसकी भी आज तक पढ़ाई नहीं किया गया है। तो भीतर में आएंगे। पूर्वी का वो पश्चिम में एक दिशा में है जी? नहीं सर, गर्मी नहीं होता, देखते रास्ता इस तरह से हो जाता। नहीं, आपको देखने में नहीं, आपको यहाँ पर लगेगा। तो ये प्रतिमा जो देख रहे हैं आगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानने लगे थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, ये भगवान अजितनाथ। इसके बगल में भगवान बुद्ध का माता का नाम था महामाया। उनको रात्रि में शब्द हुआ, सफेद तारा और सफेद हाथी 6 दांत वाले, ये जो मेरा संतान पैदा लेगा, आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा। तो भगवान बुद्ध का जन्म डूबने में हुआ, तो 7 कदम कमल का फूल पर चलने लगा, तो उनकी माता मृत हो गए। इधर आ जाइए। जब भगवान बोध गया में बौद्ध ब्रिज के पास तपस्या किए थे, उनका बनाया गया। लेकिन अल्लादीन बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया बाबू गिरिवर्ज। तो हम लोग अभी जहाँ पे ठहरे हुए हैं गिरिवर्ज में हैं। तो गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्षमिश वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार बसा हुआ है। तो
तो ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गिरी है सर। क्योंकि अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था आगे? तो बोर्ड पर भी तो साफ लिख दिया गया है सोन भंडार। नहीं ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गिरी है सर। यहाँ का इतिहास है आगे। मेरा नाम है रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। जय हिंद।